हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिसर्च अनप्लग्ड। आज हमारा पहला एपिसोड है एक फैकल्टी के साथ। तो जिससे हम आज बात करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर अहनजीत भट्टाचार्य, जिन्होंने आईजेड भोपाल को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 2024 में। और डॉक्टर अहनजीत भट्टाचार्य ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, और फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के अंडर भी काम किए हैं। तो आज हम उनसे बातें करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, उनके रिसर्च के बारे में पूछेंगे। वैसे उनकी अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो ब्रॉड एरिया उनका है केमिकल सिंथेटिक बायोलॉजी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अभी उनकी लैब अंडर इस्टेब्लिशमेंट है। तो हम उनसे ये भी जानेंगे कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि 2 साल के अराउंड हो गया है उनको ज्वाइनिंग के, तब भी उनकी लैब अभी बन रही है। और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम मेंटोरशिप के बारे में हम लोग उनसे पूछेंगे। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर अहनजीत भट्टाचार्य। व्हाट इज योर रिसर्च? आपकी रिसर्च क्या है यहाँ पे? So the area of my research is chemical synthetic biology, and our main goal is to create something called artificial cells. Okay. So सेल्स जो हम सुनते हैं, अगर मैं एक बुकिश लैंग्वेज की बात करूं, जो बायोलॉजी में लिखी रहती है, जो कि 7th 8th में भी आ जाती है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, राइट? तो आप लोग मतलब ऐसा कौन सा सेल बना रहे हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कुछ और क्या बना रहे हैं? See, all kinds of cells, whether it's a bacteria cell or a human cell or a plant cell, it shares some basic characteristics. Okay. So what are these characteristics? These characteristics are they are bound by some kind of a compartment. Okay. जैसे एक कमरा है, दीवार है. Similarly, a cell has a compartment. Okay. Then a cell hosts many metabolic reactions. बहुत सारी chemical reactions cells के अंदर होता है. So that is another thing. Then a cell has some kind of information material like DNA. Okay. And finally, cells are capable of evolution. Yeah. So one form of cell over many generations, they or one organism, they evolve into another form of life. So cells capture all cells capture these basic features. And when I say that we want to create an artificial cell, so we want to create some kind of entity which will show some of these basic features. Okay. So ऐसा create करके what we can do? Yes. So one of the biggest question in biology and in science is what is life and how life was formed in Earth. Right. And every now and then you see that there is some space mission that is sent by NASA or our ISRO or the European Space Agency. They're trying to find signs of life in the space. Right. And we want to know that is it just us or there is someone else in the universe. So how can we understand that? So we can understand that if we know that what is life and how life is different from non-living objects, right? Okay. So if we try to build a cell from anything that is available to us, any non-living building blocks, then at some point if we are able to build a cell from scratch, then we can trace back this path of how life was created, and we can better understand what it means to be alive in the language of physics and chemistry. Oh, okay. That's a very basically broad area of science, right? Yes. Yeah. So केमिकल सिंथेटिक बायोलॉजी, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये इंटरसेक्शन है केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और फिजिक्स का. Yes. So अभी मैं आपको कैसे कंसीडर कर सकता हूँ, एक केमिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट या फिर एकदम अलग ही कोई फील्ड है? अच्छा. तो मेरा एजुकेशन केमिस्ट्री में रहा है, तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी पैशनेट अबाउट केमिस्ट्री. तो इफ आई हैव टू डिस्क्राइब माई सेल्फ दैट व्हाट इज माई अप्रोच, so I will say that my approach is of a chemist. Okay. And what do chemists do? Chemists like to make new substances, right, new materials, right, discover new chemical reactions. So my approach bhi aisa hi hai. Like even if I'm working in the field of chemical synthetic biology, so what I'm trying to do is that I'm trying to synthesize a cell from the building blocks. Okay. So that's where my training and my style as a chemist comes.
और सर क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ में ये भी बता सकते हैं कि आपकी एकेडमिक जर्नी कैसी रही? क्या क्या एकेडमिक टाइमलाइंस रही आपकी? आपने एमएससी या फिर बीएससी आपने कहाँ से किया, फिर आपने पीएचडी कहाँ से की, जिससे हमारे ऑडियंस को थोड़ा और कनेक्टेड फील। हाँ, तो मेरा एक्चुअली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वेस्ट बंगाल। तो मेरा स्कूल का पढ़ाई वेस्ट बंगाल से ही हुआ। रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर में जो अवस्थित है, बहुत वहाँ का फेमस स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे भी काफी लोग हैं। हाँ। तो एक्चुअली मैं आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू माई स्कूल फॉर माई एकेडमिक अपब्रिंगिंग एंड ऑल्सो माई डेवलपमेंट एज अ human, as a individual, as a like as a person. So in our school there was a lot of freedom for intellectual thinking. Okay, so we were exposed to very high level of thoughts. Our teachers were excellent. So we don't find that kind of teachers anymore, I guess. And then many famous scientists, intellectuals, they used to visit our school. So there was a lot of opportunity to explore in very high level from a very young age. And then what I realized when I was in say 8th or 9th, that I want to become a scientist. Okay, so at that time it was very common to just go for engineering and medicine, so that was like the default choice, but I was very sure that I wanted to become a scientist in 7th or 8th. Yes. Okay. And then also like very before 10th I realized that I wanted to study chemistry. And the reason is that like I found that chemistry is that branch of science which unites all other branches of science. So chemistry is called the central science. Okay. So you get the principles of chemistry from physics, right, and you apply chemistry to biology, material science, chemical engineering, many other fields. Right. तो केमिस्ट्री सबके बीच में अवस्थित है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा सारे सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, मतलब मैं हर कोई सब्जेक्ट में पढ़ना एंजॉय करता था। तो आई फाउंड दैट लाइक दिस इज द सब्जेक्ट व्हिच विल बी बेस्ट फिट फॉर मी। तो उसके बाद मैं पढ़ने गया IIT खड़गपुर। तो आई गॉट एडमिशन इनटू द इंटीग्रेटेड MSc program. That was a 5-year program. So one of the very big advantages of IIT was that there is a lot of active research. So all our professors were also active scientists. So from very early age or very early phase in my college, I got exposed to high level research. And then in IITs we had 3 months of summer vacation. So during that time we could go to different institutes within India, and also in the later years I went to US and France to do internships. तो ये सब experience ना ये बहुत helpful था to orient me or train me towards a future scientific career. So of course I knew that I wanted to do a PhD. So I applied for PhD at the end of my college, and then I went to University of California, San Diego for my PhD. So there I spent like 6 years. I finished my PhD in 2020. And then after that I went for a postdoc at Stanford. Okay. So I was at Stanford for almost 4 years. Okay. And then I also wanted to serve my country. Like I stayed abroad for 10 years. लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे बाहर सेटल होना चाहिए। तो बहुत लोग पूछता है कि आप बाहर क्यों नहीं रहे US में। तो I was very motivated by the film Swades. Also like my education in Ramkrishna Mission gave me those values that I have to serve my country. Right. As a scientist, as a teacher, as an educator. So that was always my thought that okay, after finishing my training, I will come back to India. I will try to find a position in a reputed institute. So thankfully I got a job at IISER Bhopal. And I have been a faculty here since September 2024. सर काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। तो उससे काफी लोग और मोटिवेट होंगे और भी परस्यू करेंगे ये हायर एजुकेशन। और आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है। अदर देन अगर किसी और फील्ड में वो चले जाते हैं। तो मुझे लगता है लेकिन इसमें भी काफी स्कोप है अगर आप आते हो। डेफिनेटली। एक्चुअली आप कोई भी डेवलप कंट्री का स्टैटिस्टिक्स देखें, जैसे ये जर्मनी, स्वीडन, इवन US, तो यहाँ की 2 से 3% लोगों के पास PhD होता है। Okay. 2 to 3% of the population has a PhD.
That's a huge number. Right, right. It means लाखों या करोड़ों लोगों के पास वहाँ PhD डिग्री होती है. Right. हाँ, तो क्यों हमें लगता है कि PhD is for to become a professor. ऐसा नहीं है. PhD is needed for any high caliber jobs. So people who are developing the most advanced technologies, they should have a PhD. People who are making the most advanced drugs, they cannot make it if they don't have a PhD. So a PhD holder is very much needed in all sorts of high-tech industries. So if India has to become a developed nation, so we need to produce PhDs who will join this industry workforce and all sorts of highly technical workforce. Then not only just industry or very highly technical sector. So we need highly trained scientists to join policy making. Right. So we need policies to tackle climate change, to tackle pollution, Right. To have better healthcare, public health systems. तो जो पॉलिसी मेकर है उनके पास वो उतना हाई लेवल का ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो अच्छा पॉलिसी कैसे बनेगा. Right. So that's why, and then there are many other things also. Like if you look at many countries, so many countries, like developed countries, they have a lot of PhD holders in running their government also. Like ministers. I mean, we have some very good ministers in our country also who are PhD holders, but Right. we definitely need many more of that kind. बट सर साइंस स्ट्रीम से ऐसे मिनिस्टर्स अपने कंट्री में थोड़े कम है. Exactly. राइट. वो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंसेस से रहते हैं. बट We definitely, if we have more of such people coming to even politics and administration, that will make a fantastic impact. राइट, राइट. तो फिर वो जो साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट है उसमें भी हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जो कि एक Exactly. डेवलप्ड नेशन के लिए बहुत Yes, ज़्यादा yes. जरूरी है. Yes, yes. राइट, राइट, राइट. एंड सर एक बात और आपने बताया कि आपकी स्कूल लेवल में ही जो आपने रामकृष्ण मिशन हाँ. स्कूल से की है अपनी 10th और 12th, वहाँ पे आपको एक एक्सपोजर मिला कि बाहर के साइंटिस्ट वहाँ पे आते थे जिनसे आप इंटरेक्ट करते थे, राइट? लेकिन ये आपके रामकृष्ण मिशन में हो रहा है. बट अगर मैं ऑल टायर 2 और टायर 3 सिटीज के स्कूल की बात करूं जो अच्छे स्कूल्स हैं, हाँ. CBSE ICSE बोर्ड्स के, हाँ. वहां पे ऐसा हो नहीं रहा है. हाँ. तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी कुछ एक मुहिम या फिर एक कुछ चलाना चाहिए जिससे हाँ, definitely. इंटरेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर शुरू से ही मोटिवेट रहेंगे तो उनको वहां से एक, क्योंकि 12th हमारा एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है, वहां से हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. हाँ, हाँ. तो अगर ये होता है तो मेरे हिसाब से और ज्यादा नंबर आप डेफिनेटली आई टोटली एग्री. ये जो आउटरीच का आप बात कर रहे हैं, ये बहुत वाइड स्प्रेड ये होना चाहिए. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का एक टाउन है खरगोन, या खरगोन साउथ में है, तो वहाँ मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी के लिए गया था. तो वहाँ मुझे एक स्कूल इंस्पेक्शन करना था. तो वहाँ जाके वहाँ का जो हेडमास्टर है उनसे पता चला कि वहाँ बहुत कम लोगों को आइजर के बारे में पता है. राइट. एंड दैट इज अ प्रीटी डिसेंट साइज टाउन. इट्स अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. और हमारे मध्य प्रदेश में ये आइजर भोपाल है, तो बहुत कम लोगों को वहाँ पता है आइजर के बारे में. तो दैट रियली शोड मी दैट मोर आउटरीच इज नीडेड. हाँ, तो हमें उन तक पहुँचना है. ठीक है. तो आई थिंक जब मैं स्कूल में था तब इस टाइप का प्रोग्राम या इस टाइप का आउटरीच बहुत कम होता था. सारे कोलकाता में कुछ जो टॉप स्कूल्स थे, तो दे वर टेकन टू दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. हाँ, जैसे जो नेशनल लैब्स है, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को. आई थिंक दैट those kind of events have increased a lot. जैसे हमारे आइजर भोपाल में देखते हैं. राइट. हाँ, ये सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी है. तो CS2 के जरिए बहुत ये आउटरीच इवेंट्स होता है जहाँ दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं. नॉट जस्ट इन द भोपाल एरिया, ऑल्सो फ्रॉम से स्मॉलर एरियाज लाइक सबर्बन एंड रूरल एरियाज. तो ऐसा हो रहा है. I think if we can sustain this for a longer period, so I'm sure like in the long term it will help in a longer term. So this has to be carried on for another many years so that everyone is exposed to science. राइट. और साइंस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि Exactly. हाउ टू थिंक ये आपको सिखा देती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी Exactly. लाइफ के लिए, मुझे ऐसा लगता है. और सर ये नहीं लगता कि अगर ये जो प्रोपेगेशन है, जैसे आप साइंस और सोसाइटी की बात यहाँ पे करते हैं कि लोग आउटरीच प्रोग्राम हमारे यहाँ जो होता है उसमें बाहर से
बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो क्या टू वे नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी कुछ लोग जाएं या फिर कुछ PhDs विजिट करें? हाँ, ऐसा प्रोग्राम है। हम भी कभी कभी जाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से ऐसे आउटरीच प्रोग्राम के लिए लेके जाते हैं। तो सो फार लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर मोर कंसंट्रेटेड इन द लाइक हियर इन द भोपाल एरिया और इन द suburbs of Bhopal, but I think definitely there should be outreach in the, even in more rural areas. Right. But I'm sure there are many programs. So we see different from our institute websites, and that there are programs taking place even in village schools also. But if that can be done more frequently, I think that will be good. अगर ज्यादा फ्रीक्वेंटली होगा तो हाँ, definitely. राइट। तो ये तो सर हमारी बेसिक लेवल की बातें हो गई। अब मैं चलता हूँ थोड़ा रिसर्च की तरफ। तो जैसे आपका काम है केमिकल सिंथेटिक बायोलॉजी में, तो उसमें आप लोग एक आर्टिफिशियल सेल कुछ बनाने की कोशिश आप कर रहे हो, और जिससे आप बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस को आप एड्रेस करोगे, राइट? Yes. तो अगर मैं बात करूं तो क्या आप आंसर करना चाहते हो कि हाउ लाइफ वर्क्स या हाउ लाइफ बिगिंस? हाँ, तो my main interest is to understand how life began. Okay. Like what is the origin of life? Okay. तो शुरू में there was nothing called living cells. Okay. So everything was formed from some kind of chemical reaction or some combination of physics and chemistry. Right. तो एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट ने किया था, स्टैनली मिलर, 1952 में। Okay. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक गैस का एक मिक्सचर लिया, वो अमोनिया, वाटर वेपर, CO2, इस टाइप का कुछ गैस है, एंड ही पुट इट इन अ ग्लास apparatus, एंड देन ही सेंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट। और उन्होंने क्यों किया? तो बेसिकली he wanted to simulate the conditions which were present in a very primitive earth. तो प्रिमिटिव आर्ट में कोई ऑक्सीजन नहीं था, तो ये अमोनिया, CO2, हाइड्रोजन साइनाइड, वाटर, इस टाइप का गैस एग्जिस्ट करते थे, और देयर वाज लाइक लाइटनिंग, बिजली, तो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो वो ये सिमुलेट करना चाहते थे कि ये सब कंडीशन को सिमुलेट करके हम लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो बना सकते हैं। एंड इन द एंड ही एक्चुअली गॉट सम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ लाइक अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स। So that was a very fantastic experiment that showed that you can actually make the building blocks of life through some very simple chemical reactions. So now if we take those building blocks, and actually building blocks of life can be found in meteorites, in comets, so all types of materials can be found. So now those materials are already available in the universe. Now how did those materials come together and formed a cell-like object, right? And then once a cell-like object was formed, how did that become more and more advanced and more complicated? And from that, how the life forms that we know now, how they formed. So nothing happened magically. All these things happened over billions of years, and now we have present forms of life. Right. So I want to retrace these things. So there is a very famous saying by Feynman. So he said that what we cannot create, we do not understand. Right. So if you want to understand what is a cell, how it was created, then maybe the best way to do that is to create one. Right. So सर केमिकल सिंथेटिक बायोलॉजी वो इंडिया में अभी बहुत यंग फील्ड है, राइट? कम ही लोग करते हैं, राइट? तो आपको नहीं लगता कि ये आपकी रिसर्च के फील्ड के लिए, या आपने जो यहाँ पे चॉइस लिया है, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप गाइड करोगे, मेंटोर करोगे स्टूडेंट्स को, क्या ये नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अजीब है कि मतलब कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, या आप कैसे उसको नेविगेट कर पाओगे कि क्या हो रहा है? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ लैब्स होने से आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, आपने जो किया उसका आप एक्सपेरिमेंटल जो और भी रिजल्ट्स आ सकते हैं उसको आप बार काम कर सकते हो देख के, बट लैब्स बहुत कम है, तो कैसे आप इसको हैंडल करोगे? तो कोई भी नया फील्ड के लिए एक चैलेंज है एस्टैब्लिशिंग द फील्ड, राइट? So that means I have to play, or people like me who are working in the similar area, we have to play a pioneering role. Right. We have to establish this field. We have to show to others that this is a distinct field. This is not like some other field. I'm just giving it this new name. So I really have to show what is the uniqueness about this field.
So that is definitely a challenge, and we have to work very hard towards establishing ourselves. But what is also good is that, like, this name, this chemical synthetic biology, is not a very difficult name. So I think the students who want to pursue research, they sort of get the idea, and we also need to make some, like, materials which are easily accessible. So on our website, we put some description of this field, which someone who has like some exposure to science, they can also understand. So I get a lot of emails, like from students from different parts of the country. They show a lot of enthusiasm, so they want to know what is chemical synthetic biology. Many of them show interest that, okay, I want to explore this. And what happens is that often people are attracted to new fields because they think that there is a lot of opportunity. Right. There will be a lot of things to figure out at the very basic level. So I won't say that it is that hard to get students, because the definition of this field is not that difficult. Okay, it's not very esoteric, or it's not very difficult to explain. So there is definitely a lot of enthusiasm. Where some of the challenge lies is that, like I said, like establishing the field and then showing that it is something new and distinct from what is already there. Like some people might say that, okay, is it some kind of chemical biology? Right. Chemical biology is already a well-known field. Right. Or is it some kind of biotechnology? So we have to then show that what is the distinct character of this field. So that is one thing. Another challenge is sometimes the funding agencies. So they are a little bit unsure about whether they want to put their money on some field that is just starting to grow. So that makes it a little bit harder to convince them that my research is important and it will lead to like new avenues. Okay. Yeah. So best of luck for your fundings and yeah. So सर एक और क्वेश्चन जो निकल के आता है इसी कन्वर्सेशन में कि जैसे एमएससी कोई स्टूडेंट कर रहा है, वो केमिस्ट्री से भी कर सकता है, बायोलॉजी से, फिजिक्स से भी, कौन कौन सी ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें वो एमएससी करके आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपके अंडर काम कर सकता है? अच्छा, तो मेरा जो रिसर्च है वो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी है जी। तो ऐसा एक दो फील्ड में सीमित नहीं है. तो आई थिंक एनीवन हु हैज वर्कड इन who has MSc in chemistry, particularly organic chemistry, or even physical chemistry, they will be very good fit for me. Then people who have studied different branches of biology like biochemistry, molecular biology, then also people who have studied chemical engineering, and even some branches of physics like soft matter physics. Okay. So all these branches, they will be a good fit for my lab, and they can all contact me. Okay. So मतलब काफी broad. Yeah, it's very broad. Yeah. So we are working on very diverse problems. Okay. तो सर जब आप PhD में थे या फिर पोस्ट डॉक में थे, तो आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस आए थे? क्योंकि आप जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में थे, PhD कर रहे थे, या फिर आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पे तो वेल एस्टेब्लिश्ड लैब है इसके बारे में, पहले से बहुत दिनों से वहाँ पे रिसर्च हो रही है. तो वहाँ पे क्या कुछ चैलेंजेस आए थे? हाँ, रिसर्च तो इट्स इनहेरेंटली चैलेंजिंग. राइट. हाँ, तो मेरा जो प्रॉब्लम था रिसर्च, जो जिस प्रॉब्लम के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो दैट प्रॉब्लम वाज मेकिंग एन आर्टिफिशियल सेल व्हिच कैन ग्रो एंड डिवाइड. तो ये मेरा फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम था PhD का. तो ये बहुत ही एक लाइक न्यू प्रॉब्लम था. मतलब ये ऐसा नहीं कि इसका कोई एग्जाम्पल था मेरे सामने, और यह एग्जाम्पल था तो वो बहुत ही लिमिटेड था. तो मुझे ही ये क्वेश्चन को हर बार डिफाइन करना पड़ता था और उसका आंसर भी ढूंढना पड़ता था. ठीक है, तो दैट वाज अ चैलेंज. सो द गोल वाज नॉट वेरी क्लियर, इट वाज वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन. फिर मैं 2 साल में बहुत हार्ड वर्क करके एक पेपर का काम खत्म किया और वो पेपर को सबमिट किया. और क्या हुआ, इनिशियली वो जैसा आपको पता होगा, साइंस जर्नल है जो बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है, तो वहाँ वो रिव्यू के लिए भी गया, लेकिन उसका रिव्यू एकदम अच्छा नहीं आया. ठीक है, तो रिव्यूअर ने बहुत उसको बोला कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये there is a lot of flaws, and we realized that we had to do a lot of things. So we worked
another 2 months, then we submitted to another journal, like I think we submitted to Nature and then Nature Chemistry. So it didn't get reviewed in all those journals. And तो ऐसे करते करते फिर एक और जर्नल में मतलब बहुत टॉप जर्नल में उसका रिव्यू आया, तो हमने फिर से एड्रेस करके भेजा और बोला कि नहीं, स्टिल नॉट लाइक कन्विंसिंग इनफ. तो ऐसे करते करते ना 2 साल गुजर गए. ठीक है. और मेरे साथ और भी लोग पीएचडी कर रहे थे, या मुझसे 1 साल सीनियर या 1 साल जूनियर. तो बाकी बहुत लोगों का वो पेपर हो गया, मतलब अच्छे जर्नल, और मेरा पेपर नहीं हो रहा था. मैं 2 साल से मैं एक पेपर के ऊपर ही पढ़ा था. तो ये बहुत ही एक डिफिकल्ट फेज था. तो बार बार रिजेक्शन आ रहा था. ठीक है. मतलब जो मेरा जो रिसर्च टॉपिक है उसके लिए फीडबैक बहुत अच्छा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नया सोच है, बट एस्टेब्लिशिंग इट वाज रियली हार्ड, और लाइक फुल गिविंग लाइक फुल प्रूफ. तो फाइनली 2 साल के बाद वो जाके वो नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हुआ. तो फाइनली आई वाज रिलीव दैट ओके, लाइक इट गॉट इनटू अ गुड जर्नल, एंड आवर एफर्ट वाज फाइनली it got the recognition it needed. And उसके बाद वो पेपर काफ़ी मतलब different science media में cover हुआ. I think after that we were very happy with that. But what I was doing during this struggling phase, तो I realized that if I just stay with that one problem, then it will be very challenging. It may become very like there can be give me a lot of anxiety, and so it was giving. So then I started a parallel direction. So I found that some people in our lab were working on another direction. So I talked to them and I figured that okay, I can do another thing parallelly. Till my other project was getting accepted, I can work on another thing. And when I was working on another thing, then thankfully that other direction I was meeting some success on a relatively shorter time scale. And then one very serendipitous discovery, it really gave me another very nice result. Okay. So then the stress from the other project, that got lot relieved. Okay. So I know that, okay, even if that project takes a lot of time, I already have 2-3 more results. Okay. Right. So I will suggest, like people who are currently doing PhD, and if you are struggling, always try to see, like instead of staying stuck with one problem, try to see if you can work something in parallel. So maybe it is possible that the other problem will give you success much quicker. And when you are working on multiple things, then there is chance that there is something will work out. Okay. Right. तो आपको अगर पहली बात तो जो आप प्रॉब्लम कर रहे हो, अगर उसके थोड़े बहुत भी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, बट पहले you have to figure it out. Right. But you have to like know that okay, someday you are going to reach the end of the road. Okay. तो आपने अभी मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि सर आपने यहाँ पे आप 2024 में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में, फाइजर भोपाल में. तो यहाँ पे आपने अपनी लैब एस्टेब्लिश करना कैसे शुरू किया, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे? जैसे आपने कुछ चैलेंजेस पहले बताया कि फंडिंग के चैलेंजेस हैं, और उस एरिया में बच्चे तो मिल जाते हैं लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं कि करना कैसे, तो आपको ज्यादा गाइडेंस देना पड़ेगा रादर देन और एरिया ऑफ रिसर्च के. तो और क्या क्या चैलेंजेस आए, और अभी कितना टाइम और लगेगा? अभी भी आपकी लैब अंडर एस्टेब्लिशमेंट है, राइट? तो अभी और कितना टाइम लगेगा, और क्यों इतना टाइम लगता है? देखिए, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइजर भोपाल हैज बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव टू मी इन हेल्पिंग मी get set up my new lab. It gave me all the infrastructure and funding I needed. I think the amount of funding that I received is extremely generous. And the administration and all the senior faculties and our director and all the deans, they were extremely supportive to me. However, like the challenges that I faced are not specific to Aizer Bhopal, but more related to the Indian system. Okay. And this is something which I was not very familiar with because my entire research training was from abroad. Right. So those are the areas where I really had to learn a lot of things and also unlearn a lot of things which I was used to in the past. So first of all, like what we have in India is there is a lot of paperwork and bureaucratic steps. Okay. So there is very little flexibility for doing a thing.
So suppose I want to purchase a particular equipment. I need to fill up so many forms, get signature from so many people, then comply with so many rules. And then every step takes a few days. Like I'm waiting for 7 days for one signature to come. And no one is to blame here, because the thing is that everyone is so busy and piled up with work. Then definitely they also need time to give me that signature. Right. But all these things, they keep adding to the delays. And then finally, when this thing comes, the approval for the purchase comes, then I need to wait for several months for the equipment to get either manufactured or to get imported. And then once that comes, then quite often it's not easy to find a place where to install that instrument. So maybe the lab is not ready, like what you just said. So my permanent labs is still not ready. So those things have to stay in boxes for several months. So these things are definitely challenges. Then another thing is that the way the research funding is given to us, sometimes that can also be a challenge. So let's say some national funding body is giving us funding for research. So the money may not be released in a timely manner. Right. So maybe it is released during the middle of the year. But we have to finish all the money before the end of financial year, which is end of March. So which puts a lot of stress, because then that means we have to utilize a huge amount of money within a very short time. Right. So that can lead to bad purchases, or it can lead to some decision which is very hurried. Right. May not have time to make a very well-informed decision in some cases. So these things are the challenges. Then some other challenges are that, so we have to accept that the science and technical infrastructure that is available in our country is still not the best in the world. Right. So if someone has worked in US or Germany or Japan, so when they come back to India, they will realize that a lot of the things that they took for granted is not here even in our entire country. Right. So, for example, when I was at Stanford, I used to work in a synchrotron facility. So it is a very, very advanced particle accelerator, so where X-rays are produced. Right. And that was literally next door to our university. So we could go there anytime. And this is like one of the top facilities in the entire world, which was available literally at our doorsteps. So we could get approval to work there very easily. However, now if I want to go there, I have to plan at least 1 or 1.5 years in advance. I have to make applications. My application has to get selected through a rigorous review. Then I have to apply for visa. I have to, make travel arrangements, get funding for the travel. So many things are there. Find a way to send my samples. Right. So many challenges are there which we will face. And as a result, what happens? We think that, maybe just do some research which will not need that kind of advanced facility. Now, when that happens, then often you make a compromise with your research. Right. Then you are not able to do the research at the highest standards because of so many barriers which are there. Then, also same for the instruments. So, in the developed countries, so in a good university, you will find all sorts of instruments under the same in the same building or in the same campus. But here, maybe the entire country has 2-3 such advanced instruments of one particular kind. So that means there is a huge demand for that instrument. So everyone wants to use that, and it's very difficult to get time on it. So if your research is critically dependent on such an instrument, then it can be delayed or it can be severely affected. Right. So these are some of the challenges which I felt after spending a few months. But anyway, so any kind of challenge means there is an opposite side of it. That means there is an opportunity also. Yeah. So there is a room for innovation. So if my research depends on some very advanced technology, so why not I think of some solution to that which will not require that advanced technology? Can I do it in a much more simpler way? And many people are doing that. But sir, ये जब मैं ये कहता हूँ कि कुछ बैरियर्स हैं और उसका मैं कुछ अल्टरनेटिव ढूंढता हूँ, तो ऐसा होता है कि जब मान लीजिए कि मैंने अभी पीएचडी में एडमिशन लिया अंडर योर गाइडेंस और मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मेरे पास नहीं है,
मुझे वो इनोवेटिव सोच लाने के लिए भी पहले मुझे वो सारी चीजों से थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, देन आई कैन फाइंड द अल्टरनेटिव। तो वो कैसे एक स्टूडेंट आपके अंडर ज्वाइन करके वो करेगा, मुझे ये समझना है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो हाउ टू ओरिएंट देम टू थिंक इन वेरी बिग टर्म्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। द एक्सेस कैन बी लिमिटेड एंड द नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर दे आर अवेलेबल दैट कैन बी लिमिटेड, बट थिंग्स आर देयर. So I can give you one example. So I gave the example of the Stanford synchrotron facility. Right. So actually, the only synchrotron facility in our country is located not too far from here. So that is in Indore, Raja Ramanna. So it's called RRCAT, Center for Advanced Technology. So that is the only synchrotron facility in our country. It's not as advanced as the ones which are in US or Japan or Germany, but it's pretty good. So a lot of good science has come out of it, and it's very easy to access. So, and it's also free to use. Okay. So that is completely government funded, and there are very high caliber scientists who are working there. So I take my students once every 2 months to RRCAT Indore, and that's where they learn how to use a synchrotron facility. So that later, if we apply for bigger funding and if we get a chance to go abroad, then at least they know how to work there. What will be the expectation, how the setup will be. So that is one thing. Another such advanced area is different electron microscopy facilities. So for that, what we do is that, so there is different national facilities which are available in the country. So again, like we send our samples maybe a few times, so that actually my students are familiar with the process. They know if we get the data from there, how to analyze the data, so that someday if some opportunity opens up, so they will at least be familiar with the system. ओके, बट मतलब हमें कोलैबोरेट करके ही करना पड़ेगा आगे के लिए, क्योंकि जैसे जैसे फंडिंग बढ़ती रहेगी फिर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग उस वाली रेस में आ जाएंगे जिसमें सारी दुनिया ही दौड़ रही है। राइट। तो सर क्योंकि आपको अराउंड 10 to 12 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो जब आप हायरिंग करते हो, जैसे यहाँ पे भी PhDs के इंटरव्यू वगैरह होते हैं, या फिर MSc के भी इंटरव्यू होते हैं जब आप MSc करने आते हो, तो जब आप हायरिंग करते हैं तो उसमें क्या एक चीज है जो स्टूडेंट के अंदर आप देखते हो? ओके। तो देखिए, जब हम किस PhD के लिए हायर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल हु गेट शॉर्टलिस्टेड, तो उनका तो एक लेवल ऑलरेडी होगा। मतलब कुछ कट ऑफ है, जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आना पड़ता है, जैसे गेट, नेट। तो जो जिसने क्लियर किया तो उनका मतलब एक स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी होगा ही। और जो कॉलेज का जो रिजल्ट है, कुछ कट ऑफ है, certain percentage या GPA, तो that means they are academically they have a certain level, तो ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सबके पास होता है जो आता है इंटरव्यू के लिए। then what we look for, right, तो we don't look for bookish knowledge only, क्योंकि PhD या रिसर्च एक क्रिएटिव फील्ड है, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है। तो हम देखते हैं who can think on their feet। तो हम PhD इंटरव्यू में एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो वो सिलेबस में नहीं आता है। एक रिएक्शन दे देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा इसका बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो शायद उसने कभी देखा ही नहीं है वो जो रिएक्शन है या जो केमिकल है, मॉलिक्यूल है। तो हम देखते हैं वो अप्रोच कैसे करते हैं। और तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, मतलब कुछ स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट वो उसका मतलब आधा तो निकल ही देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस टाइप का क्वालिटी किसके अंदर है, हु कैन थिंक ऑन देयर फीट, घबराता नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज देयर एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे शुड बी क्यूरियस, they should be willing to work in a team, they should be willing to persevere। भी बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ता है PhD के लिए। हाँ, तो किसके पास ऐसा एटीट्यूड है। एंड नेक्स्ट थिंग वी लुक फॉर लाइक हु इज ऑल्सो आर वी आस्किंग ओनली क्वेश्चन और दे आर ऑल्सो आस्किंग सम क्वेश्चन। सो क्वेश्चन, PhD का आपका जो मेन काम है वो यू हैव टू आस्क साइंटिफिक क्वेश्चन। सो इंटरेक्शन भी होना चाहिए। इंटरेक्शन, हाँ। तो ये सब हम देखते हैं।
ओके ओके ओके। तो बेसिक है कि अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, Yes. बट उसमें जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लगाते हो केमिस्ट्री के या फिर हाँ, फिजिक्स के हाँ, फिर हाँ। बायोलॉजी के, वो करेक्ट होने चाहिए। वो हाँ, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट राइट राइट। तो ऐसे करके आप लोग आराम से इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो, Yes, उसमें yes, कोई yes, दिक्कत नहीं। yes. तो सर जब आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में दिया था वो एडमिशन फॉर द पीएचडी, हाँ तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहता है? वहाँ पे आप प्रपोजल देते हो और फिर आप सिलेक्ट होते हैं, ऐसा क्या? हाँ, एक्चुअली हमारे टाइम में बहुत अलग था। हमारे टाइम में वो जीआरई का रिक्वायरमेंट था, जीआरई एग्जाम। ओके तो बोथ जनरल जीआरई और सब्जेक्ट जीआरई। ओके तो अभी वो जीआरई का रिक्वायरमेंट आई थिंक 5-6 साल हो गया वो उसको राइट, वो हटा दिया। कोविड के बाद हाँ से हट हाँ, गया, उसको राइट हटा दिया। हाँ, तो अभी क्या है, अभी थोड़ा ये नॉन स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि आप ऐसा, और आपका जो कॉलेज का जो रिजल्ट है वो जज करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेजेस जैसा आइजर है, आईआईटी है, ठीक है, यहाँ का तो स्टैंडर्ड पता होगा कि अच्छा यहाँ 8 पॉइंट का मतलब ये है, राइट हाँ, यहाँ कोई 9 पॉइंट है तो ऐसा है। हाँ, तो दे कैन जज अ लिटिल बिट बेस्ड ऑन दैट, बट व्हाट रियली मैटर्स, सो आपको एक वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है। ओके तो बेसिकली व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर रिसर्च, और आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, किन के साथ काम करना चाहते हो, ये सब लिखना पड़ता है एक ऐसे 2-3 पेज का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो वहाँ का जो ग्रेजुएट एडमिशंस कमेटी होता है वो सब अच्छे से पढ़ता है कि ये जो ऐसे है, दैट मीन्स द ऐसे हैज़ टू बी वेरी ओरिजिनल। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2-4 शब्द लगा के, हाँ अच्छा शब्द लगा के 1-2 कोटेशन लगा के आपने लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो आपको अंदर से आना चाहिए, ठीक है। Okay, okay. और जो लोग ये रिक्रूटमेंट करता है वो सालों से करता है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, सो दे विल फाइंड आउट लाइक हु इज एक्चुअली मोटिवेटेड, और किसने बस लिख दिया कुछ। हाँ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज रिसर्च एक्सपीरियंस इज नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास कुछ ना कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समर के टाइम में इंटर्नशिप, या जिसके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट वो मास्टर्स प्रोजेक्ट ये सब होना चाहिए। तो 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना ही पड़ता है। एंड पब्लिकेशन रियली हेल्प्स नाउ। मतलब आपके पास 1-2 पब्लिकेशन होगा, नॉट नेसेसरली फर्स्ट ऑथर, कोई भी को ऑथर वो भी चलेगा, बट आजकल देखते हैं कि किसके पास पब्लिकेशन है। क्योंकि पब्लिकेशन है आपके पास है, मतलब आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम किया जो कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग हुज इफेक्ट इज विजिबल। मतलब ये तो कोई भी कह सकता है ना, मैं लैब में जाके ये किया वो किया, पर उसका आउटपुट क्या है। तो आपके पास एक पब्लिकेशन है तो यू आर ऑलरेडी वे अहेड ऑफ मेनी अदर पीपल। ओके ओके। तो ये प्रोसेस मतलब काफी चेंज हो गया। हाँ, काफी चेंज हो गया। हाँ राइट राइट। बट आपके अंदर अगर मान लीजिए कोई एमएससी ज्वाइन करता है, हाँ कोई स्टूडेंट, हाँ और वो चाहता है कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से हाँ करूं, मैं कुछ काम हाँ करूं, हाँ। तो आप उसको कैसे गाइड करोगे? मतलब इन द एंड ईयर, या फिर मैं कहूँ कि लास्ट के जो 6th मंथ है उसमें क्या आप कैसे गाइड करोगे कि उसको कुछ पोजीशन एटलीस्ट, मतलब पोजीशन तो उसको मिल जाए, राइट? तो आप उसको कैसे गाइड करोगे? हाँ, तो कोई बाहर जाना, इंडिया के बाहर जाना चाहता है, तो आई थिंक ये गुड रिसर्च रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पर्टिकुलरली पब्लिकेशन। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका काम, उसको ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसका एक रिजल्ट आएगा विद इन 1 year या 6 month of time span. So that they can actually be on a paper which will be published, or at least like we can put the paper on archive by the time they are applying. So that is something I definitely try to do. Second thing is that जब आप ये MSc स्टेज में होते हो ना, तब आपके पास उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि आप किस टॉपिक पे आप PhD करना चाहते हो। मैं देखता हूँ कि बहुत टाइम क्या होता है, लोग ये कोई अंडर ग्रेजुएट के टाइम में कोई इंटर्नशिप या कुछ प्रोजेक्ट से स्टार्ट करता है, और उनको लगता है कि मैं यही करूँगा लाइफ पर, बट दैट इज़ नॉट राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो MSc का जो टॉपिक है, तो आप कोई यू डू अ PhD इन अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, राइट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और दैट हैज टू बी based on like what someone's interests are and what someone's skills are. ओके। जैसा मेरा एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या टॉपिक था, इम्यूनोलॉजी।
आई थिंक आई शुड डू माई PhD in immunology. तो मैं कहा ठीक है, but that is fine. But the thing is that you are trained in chemistry. Right. So that is a completely different thing. So you have no idea or no exposure. So you should definitely explore a little bit outside of what you are already doing. But you keep one foot in your MSc project. Okay, like 50% MSc का रखो, बाकी 50% कुछ और करो. तो ऐसा होना चाहिए. तो you gain skills. So I tell my students that you gain these skills so that you become valuable during your PhD. तो आपके पास केमिकल सिंथेसिस का स्किल है, माइक्रोस्कोपी करने का स्किल है, राइट, किसी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का स्किल है, तो यू कैन यूज दैट सेम स्किल्स to a new problem. Right. So when you are interviewing for PhD, then if the interviewer sees that okay, you have the necessary skills to do research in my lab, maybe it's a different field, but you have the necessary skills, so you are actually desirable. Another thing is that मैं ये कहता हूँ कि ऐसा एक फील्ड को चूज करो जो अभी ग्रोइंग फेज में है. ओके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहाँ ज्यादा है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई like what are some of the fields which are growing now. Okay. तो जब मैं PhD के लिए मैं एडमिशन मतलब PhD के लिए अप्लाई कर रहा था, तब ये सिंथेटिक बायोलॉजी एक ग्रोइंग फील्ड था. अभी भी ग्रोइंग फेज में है अभी. हाँ, तो दैट काइंड ऑफ फील्ड इज गुड बिकॉज देन यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल later. So when you will apply for a job, then people will say, okay, this guy or this person is trained on a field which not many people are. That means we want to hire them. We want to start some new direction. And other thing, if you are planning to go abroad, also communication skills matter. No. So you have to be good at speaking. You have to be good at writing, because that's very important. Because you have to go abroad and you have to speak in English or speak with people coming from other countries. So your communication skills have to be very important, very strong. ओके. बट सर लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे इंडिया में मैं ये बात करता हूं कि जो नंबर ऑफ PhDs आते हैं 50-60% की मैं बात करूं, या तो वो मिडिल क्लास से आ रहे हैं या वो लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं. अभी मैं अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें भी 50-60% ऐसे ही लोग हैं. अपनी फील्ड का बात करूंगा तो उनको MSc तक इतना ये जो आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर जाने के लिए, उतना उनको एक्सपोजर मिल नहीं पाता. तो फिर वो PhD में एडमिशन तो ले लेते हैं, रिसर्च भी वो अच्छी करते हैं, बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि उनकी रिसर्च कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि कम्युनिकेट करके ही आप बताते हो कि आपकी रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है, आगे क्या हो सकता है, कैसे क्या होगा. तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी अपने इंडियन इकोसिस्टम में जो लोग PhD में आ जाते हैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया जाता, बट आफ्टर PhD भी हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है. क्योंकि आपको फर्दर स्टडीज में भी जाना पड़ेगी, आपको अगर प्रोफेसरशिप में आना है वहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी. तो क्या होना चाहिए इसमें, क्या और ऐड करना चाहिए इस इकोसिस्टम में? अच्छा, ओके. एक्चुअली कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द PhD ट्रेनिंग. कम्युनिकेशन एंड राइटिंग, राइट. ये दो स्किल के बेसिस पे आपको मतलब सिर्फ ये दो स्किल के बेसिस पे आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है आपका PhD. तो ये इतना इम्पोर्टेंट है. मैं कहूँगा कि अगर ये आपके PhD के लिए साइंस में भी इम्पोर्टेंस वाइज 70%, तो 30% आपका कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स. तो किसी के पास ये मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मतलब PhD ज्वाइन करने से पहले दे हैव टू learn it, they have to pick it up. बाद में जाके कुछ अच्छा करने के लिए, तो they have to prioritize this no matter what. तो how they can do it? Right. तो देखिए, साइंस इज अ इंटरनेशनल एफर्ट. तो ऐसा नहीं है कि इंडियन साइंस है, चाइनीज साइंस है, अमेरिकन साइंस है, ऐसा नहीं है. साइंस इज साइंस, और साइंस को कम्युनिकेट करने का एक ही भाषा है, वो है इंग्लिश. रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में. ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब ये हम रीजनल लैंग्वेज में भी हम बात कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द wider scientific community, you have to be able to communicate in English in both written form and in spoken form. तो then how can we practice the language? Right. सबसे पहले ये शुरू होता है आपका जो डे टू डे एक्टिविटी है वहां से.
Okay. अब ये लैब में जब काम करते हो तो यहाँ मतलब पूरा पूरा भारत से बच्चे आते हैं, बिल्कुल सही। दे कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, Right. सो मे बी 2-3 people speak the same language, but maybe the rest don't. So this is where you should start. You should start communicating with your lab members in English, at least when you are working. हाँ, मतलब ऑफ आवर्स में या सोशल इंटरेक्शन में आप कुछ भी कर सकते हो, बट व्हेन यू आर वर्किंग यू हैव टू ट्रीट योर लैब एज अ ऑफिस, एज अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. तो वहाँ ये बातचीत भी इंग्लिश में ही करनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दे हैव टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी of giving a talk or some kind of presentation very seriously. तो ये मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ कि जब भी कोई ग्रुप मीटिंग होता है तो ग्रुप मीटिंग में ऐसे प्रिपेयर करो जैसे कोई कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. हाँ, तो मेक योर स्लाइड्स वेरी सीरियसली. हाँ, मेक श्योर यू स्पीक क्लियरली. और मैं हर ग्रुप मीटिंग के बाद मैं फीडबैक देता हूँ कि अच्छा तुमने ये स्लाइड को ठीक से नहीं बनाया, या तुम्हें ये बताना चाहिए था. हाँ, तुम्हें फ्लुएंसी बढ़ाना है. हाँ, तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन देयर आर समटाइम्स दे गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर गिविंग टॉक्स, जैसा ये ग्रेजुएट सेमिनार होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है, या कोई कॉन्फ्रेंस होता है. Right. तो दोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो treat every such opportunity. हाँ, maybe they don't seem very big ना, so ये आपके डिपार्टमेंट के सामने ही आप टॉक दे रहे हो. No, you have to take those very seriously. और मैं मेरे स्टूडेंट्स को वो प्रैक्टिस भी कराता हूँ कि देखो तुम्हारा जैसे आजकल वो मेरा स्टूडेंट्स वो BSMS प्रेजेंटेशन का तैयारी कर रहा है. तो हम ये 2-3 राउंड वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, मॉक प्रेजेंटेशन, एंड दे हैव टू बी परफेक्ट. Right. तो आप ये बहुत अर्ली स्टेज से ऐसा कोई भी PhD स्टूडेंट ऐसा हैबिट बनाएगा तो आई थिंक दैट विल स्लोली इट विल मैच्योर. हाँ, तो ये हुआ आपका जो स्पीकिंग स्किल. तो स्पीकिंग स्किल मतलब जो कोई भी डिपार्टमेंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब में ग्रुप मीटिंग, ये सब प्रैक्टिस करने का ग्राउंड है. अच्छा, व्हाट अबाउट राइटिंग स्किल? राइट. हाँ, राइटिंग इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको एकदम मतलब वो टेक्निकल राइटिंग में अच्छा होना है. हाँ, क्योंकि कोई भी आप जब रिसर्च पेपर लिखोगे तो बेसिकली आपको इंग्लिश में लिखना होगा. और द लैंग्वेज हैज टू बी वेरी गुड, वेरी क्लियर, वेरी अनएम्बिगुअस, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, गुड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस. और ये बहुत लोगों को इसका अभ्यास नहीं होता है ना, कॉलेज तक मतलब इतना मैटर नहीं करता है किस लैंग्वेज में लिख रहे हो. बट जब व्हेन यू आर सबमिटिंग अ पेपर फॉर अ इंटरनेशनल जर्नल, तो बेटर द जर्नल, मोर रेप्यूटेड द जर्नल, स्ट्रिक्ट द स्टैंडर्ड्स आर. सपोज आप बहुत इंटेलिजेंट, कोई स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है तो बहुत हार्ड वर्क करके बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने पाया, तो वो रिजल्ट को कम्युनिकेट करना भी इम्पोर्टेंट, उतना ही इम्पोर्टेंट है. नहीं तो वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा. हाँ, तो पीपल हैव टू बिल्ड अ राइटिंग हैबिट. तो हाउ कैन दे डू दैट? तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे लैब में स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि जब भी तुम कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ोगे तो तुरंत उसका एक समरी बनाना. ठीक है. और वो टाइप करके मतलब इलेक्ट्रॉनिकली. तो जस्ट मेक अ 200-250 वर्ड समरी ऑफ दैट आर्टिकल विद द इम्पोर्टेंट मैसेज कि वो पेपर तुम्हारे काम में किस काम में आएगा. तो जस्ट राइट दैट पोर्शन डाउन एंड यू टाइप इट, and you make sure you are typing, you are not copy pasting the sentences, you type in your own language. So if you do that at least 3-4 times a week, that builds your writing habit. Right. हाँ, तो इससे करके आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों एग्जैक्टली. और आपका जो डे टू डे जो लैब एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड है वहाँ भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है. तो spend a significant time in writing your day-to-day experimental records. So treat your experimental records like you are writing a method section for a paper. So make sure that whatever you're writing to describe your experiment, all the sentences are correct, spellings are correct, everything is described in a technical way. So if someone can do that, they will build the habit, and the result will show after 1 year, 2 years. It will definitely give you result. मतलब शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली यू विल फील दैट. हाँ. तो सर एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि जैसे यहाँ का जो रिसर्च कल्चर है, और आपने क्योंकि PhD भी बाहर से की और पोस्टडॉक भी बाहर से किया, तो दोनों के रिसर्च कल्चर में क्या डिफरेंस है? मतलब वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं? वहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पे लोग काफी ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब मुझे 10 बजे आना है, 5 बजे से 5 बजे तक काम, वर्क लाइफ बैलेंस. यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं. तो क्या है, मतलब मुझे नहीं पता, आप इसमें देखिए ये थोड़ा डिपेंड करता है कि मतलब बाहर में मतलब पर्टिकुलरली डेवलप कंट्री
में लाइफस्टाइल क्या है लोगों का और यहाँ क्या लाइफस्टाइल है, Okay. तो इस पे थोड़ा डिपेंड करता है। तो एक मेजर डिफरेंस जो है, जैसा इंडिया में क्या है, इंडिया में ये पीएचडी स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इन से आइजर्स, आईआईटीज, ऑल द सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, दे मोस्टली स्टे इन द इंस्टीट्यूट, दे स्टे ऑन कैंपस। Right. जो आपके विदेश में मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है। सो दे नीड टू लीव लिटिल बिट फार, दे नीड टू टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दे नीड टू ड्राइव टू द लैब। राइट। तो इसलिए ये जो शेड्यूल का जो आप बात कर रहे हो, हाँ, ये 9 बजे स्टार्ट होता है और से 6 बजे 7 बजे खत्म हो जाएगा, तो वो थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज ये उनके लिए भी चैलेंजिंग हो जाएगा। और कोई किसी का फैमिली है तो उनको तो थोड़ा बहुत ये वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। ओके। लेकिन इंडिया में क्या है, मतलब आप कैंपस में रहते हो और आपको जो डे टू डे जो चीज़ें हैं, जैसा ये खाना बनाना, हाँ, तो विदेश में तो वो खाना भी बनाना पड़ता है आपको, नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये सब यहाँ नहीं है। तो यहाँ का अच्छा जो पार्ट है, आप कैंपस में रहते हो, आप वॉकिंग डिस्टेंस में रहते हो, आपका खाना के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, और ये सब मेंटेनेंस वगैरह ये सब भी बहुत ईजी है, जो विदेश में लोगों को इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक यहाँ थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप रात को 9 बजे 10 बजे भी जाके लैब में काम कर सकते हो। मेरा कहना है कि इसको मतलब कंपलसरी या इसको जो स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाहिए, मतलब सबको वो लैब सेफ्टी ये सब फॉलो करके ही काम करना चाहिए, बट देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच मे नॉट बी पॉसिबल in a place abroad because they have all many other constraints, ठीक है। राइट। तो that creates some sort of a different culture, ठीक है। तो जैसा ये तो इसलिए वहाँ ये वर्क लाइफ बैलेंस इसका पॉइंट ये बार बार आता है, ठीक है। हाँ, बाहर एक और चीज़ है, आप अमेरिका में जाओगे या यूके, जर्मनी, ये सब कंट्री में जाओगे तो वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत डाइवर्स है। तो वहाँ कोई अमेरिकन बंदा है, कोई चाइनीज है, कोई इंडियन है, कोई जर्मन है, कोई स्पेनिश है, सब मिलजुल के एक साथ काम करता है। तो क्या होता है, जब लोग अलग अलग कल्चर से आता है तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा वो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा एडम्पशन नहीं करता है, तो लोगों को स्पेस देता है। तो पर्सनल मैटर में ज़्यादा घुसता नहीं है। जब आपके वर्क प्लेस में जितना वो होमोजीनियस होता है ना ये डेमोग्राफी, उतना लोग पर्सनल मैटर में घुसता है और थोड़ा अनप्रोफेशनल बिहेव करता है। तो मैं जितना देखा हूँ वो यूएसए में, तो लोगों के बीच में मतलब वर्क प्लेस में बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, और हो सकता है इसका एक कारण है, लोग बहुत अलग अलग कल्चर से आता है। राइट। तो सबको थोड़ा ठीक है स्पेस देता है, ठीक है, मतलब आपका ये है, हम आपसे थोड़ा डिस्टेंस, हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। राइट। तो आई थिंक ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके। तो और इससे क्या होता है, इससे आपका वो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, अननेसेसरी जो पर्सनल मैटर में मिडल करना, ये सब नहीं होता है। तो काफी चीजें डिफरेंट है। और यहाँ पे भी क्या सर, यहाँ पे भी प्रोफेशनलिज्म नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हम लोग डिफरेंट स्टेट से आते हैं, तो यहाँ पे भी तो वो कल्चर बनाया जा सकता है, राइट? हाँ, डेफिनेटली बनाया जा सकता। तो कौन सा ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो सिस्टम या ये सिस्टम? आई थिंक पीपल हैव टू बी प्रोफेशनल, आई मीन दैट इज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दैट। तो मैं आइजर भोपाल का जो फाइनेंस डायरेक्टर प्रोफेसर वीके सिंह, तो उनसे मेरी बात हुई थी एक कॉन्फ्रेंस में। वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ही इज अ अमेजिंग मैन, ओके। तो ही इज़ अ ग्रेट लीडर। तो मैं जाके उनसे पूछा था कि मैं अभी लैब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अभी 2 महीने पहले आइजर भोपाल ज्वाइन किया, आपके लिए, मेरे लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमूव दिस भैया एंड दीदी इन योर लैब। हाँ, so when you are in a workplace, all of you are colleagues, right? So tell your students not to call each other bhaiya and didi and all these things. Okay, so that is the first step towards. And then next thing he said, don't talk to your student in a regional language, okay, not like Hindi, not like Bengali or whatever. So we maintain that kind of a distance from your students. ठीक है, वर्क प्लेस के बाहर आप
कुछ भी कर सकते हो. But when I think these two are very fantastic advice. Right. So you have to treat each other as your colleague, not as your brother, sister, or friend, not even friend. When you are in a workplace, yeah, you can be friend with someone, but when you are in a workplace, you are colleague. Right. So I think that's how we can bring in some. काफी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस अभी यंग फैकल्टीज बनने वाले हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है. तो मैं सर अभी लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस और लूंगा कि जैसे सिंथेटिक सेल जो है ये रिसर्च फील्ड है, ये काफी यंग है अभी. Yes. आज से 10-20 साल के बाद आप इस फील्ड को कहाँ देखते हो इन इंडिया? अच्छा. तो ये जो सिंथेटिक सेल, तो आई गेट दिस क्वेश्चन बाय अ लॉट ऑफ पीपल. सो ओके फाइन, लाइक यू विल अंडरस्टैंड सम फंडामेंटल साइंस की व्हाट इज लिविंग सेल, व्हाट इज नॉन लिविंग, दैट इज ओके. बट व्हाट एल्स, लाइक कैन यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट? कैन यू गेट सम इसका एप्लीकेशन क्या होगा? Exactly. तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत मिलता है. तो एक्चुअली व्हेन यू आर ट्राइंग टू सिंथेसाइज समथिंग, जो जैसे मैंने शुरू में बताया कि आई एम अ केमिस्ट, आई एम ट्राइंग टू मेक new materials, new substances, new chemical reactions. Right. So when you are making an artificial cell, so you are bringing together a lot of things which have never met before. Okay. So molecule A with protein B with instrument X. तो मैं ये तीनों को मिला के कुछ कर रहा हूँ. Right. So what happens when you bring in widely different things? Then that leads to discoveries. Right. Okay. Right. So then you discover new substances, new chemical reactions, new materials, and all these materials can have many different applications. Yes, sir. So, for example, some of the things that may come out of these artificial cells is that we can make new kinds of vaccines. Okay. So maybe let's say we can think of making artificial cells which can be used as vaccines. So because these cells are made in a very different way, their storage, their shipping, those things can be very easy. So we can just maybe keep them like a dry powder, and we just transport them in a truck or something to a remote area. We just add some water, and then it becomes like an artificial cell which has some vaccine-like properties. Okay, so that is a possibility. I'm just saying, like, nobody has done this so far, but that is a possibility. There are some good promises towards that. Then we can make materials which can be used for delivering drugs. So since COVID, there has been a lot of effort in making these lipid nanoparticle-based vaccines. Right. Vaccines for different infectious diseases, vaccines for cancer. And to deliver all these vaccine materials, you need these compartment-like structures, Right. so, which are basically like artificial cells or like artificial viruses. So research in these fields will also aid those fields. Okay, so maybe by working with artificial cells, I discover some material which will be used to deliver the vaccines more effectively. Yes. So these are things that can happen. Okay. Means काफी ब्राइट फ्यूचर है अगर कंटिन्यूअसली इसमें काम होता रहेगा. Exactly. सर ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं अब जाना चाहूंगा क्योंकि हमने काफी बातें कर ली हैं इसमें. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो यंगस्टर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, रिसर्च की फील्ड में आना चाहते हैं या आपकी रिसर्च की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, एक लास्ट मैसेज? सो आई थिंक कोई भी रिसर्च के लिए कोई आना चाहता है तो आई थिंक यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई लाइक व्हाट योर पैशन इज. Okay. So are you really passionate about research? So that is the most important thing. Second thing is that ठीक है आपके पास passion है. Do I have the necessary skills to follow that path? Okay. तो वो भी इम्पोर्टेंट है. मतलब मैं बहुत लोगों को लगता है एक कम उम्र में कि अच्छा मैं ब्लैक होल पे रिसर्च करूंगा या मैं ये मार्स में मैं कुछ स्पेस क्राफ्ट भेजूंगा. लेकिन टू डू ऑल ऑफ दैट you need to study astrophysics, something like that. You need to solve very difficult math. That means you may have passion, but are you strong in math? So that they have to judge. तो पैशन क्या सर वो मोटिवेशन से आता है? जैसे हम तो मूवीज देख के भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं कि हम ब्लैक होल पे काम करेंगे. तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं पैशनेट किस डायरेक्शन में हूँ? हाँ, पैशनेट किस डायरेक्शन में हूँ वो मतलब आपको देखना होगा कि कंसिस्टेंटली आपको किस एरिया में किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है. तो ठीक है आज कुछ है कल कुछ है ऐसा नहीं है. मतलब इट हैज टू बी कंसिस्टेंट फॉर अ फ्यू इयर्स एट लीस्ट.
ओके, मतलब आपने कोई चीज देखी, आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और आपने काम किया ओवर द राइट, फिर आपको पता चलेगा कि वो आपका ये मेरा पैशन है। ये पॉडकास्ट पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज थे डॉक्टर अहनजीत भट्टाचार्य, जिनका इंट्रोडक्शन मैं दे ही चुका हूँ। उनकी पूरी जर्नी आपने सुनी, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग उनकी जर्नी है। काफ़ी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काफ़ी खुल के बातें की और बताया कि क्या क्या चीज़ें आपके रिसर्च की जर्नी को ईजी कर सकती हैं और आपकी रिसर्च की जर्नी कैसे और बेटर हो सकती है। उन्होंने काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें बताई इंडियन और फॉरेन एकेडमिक सिस्टम के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए अगर आपके कुछ सजेशंस हैं जिससे हम लोग अपने इस पॉडकास्ट के जर्नी को और ज़्यादा इंसाइटफुल बना सकें। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर सर से अगर आपको बात करना है, अहनजीत सर से, तो मैं उनके वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। थोड़ा सा बिजी रहते हैं तो शायद ईमेल का रिप्लाई देने में वो डिले कर सकते हैं, बट वो रिप्लाई देंगे। बहुत ही अमेजिंग आदमी है, आप उनसे बात करके काफ़ी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी ले सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।